Hello everyone, this is your Mistry Sir. Welcome to my channel Mistry Sir Classes. In this sessions, I am going to discuss another very important topic, that is Kohlrausch law, or which is also known as Kohlrausch law of independent migrations of ions. And one more basic thing is what is the importance of Kohlrausch law and where do come from Kohlrausch law, कहाँ से आया, क्यों हम कोलरॉश लॉ को स्टडी करेंगे, और आफ्टर स्टडी व्हाट वी गेट entire electrochemistry. So this video will gives you clear idea about maximum trends of Kohlrausch law, and please concentrate and watch end of the video. I am insurance to you can solve maximum question based upon Kohlrausch law or Kohlrausch law of independent migrations of ions. मतलब आज तक जो कोलरॉश लॉ को लेकर एक जो परसेप्शंस था आपके माइंड में कि नहीं ये टफ है या फिर ये समझ में नहीं आता है, सो दिस इज माय इंश्योरेंस टू यू कैन वॉच टिल द वीडियो. So let's start the Kohlrausch law. So how to where do come from Kohlrausch law. Now lastly we will discuss Kpm, that means molar conductivity, which is equals to limiting molar conductivity minus A under root C. सो व्हाट हैपन इज़ देयर, जो बेसिकली कोलरॉश लॉ होता है या ये जो फॉर्मूला होता है बेसिकली यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट पे वर्क करता है. So what is the sense of univalent, that means suppose NaCl KCl, अगर इसका ब्रेक डाउन किया जाए तो सोडियम प्लस Cl माइनस, यहाँ पे पोटेशियम प्लस Cl माइनस, ये यूनिवैलेंट चार्जेस होता है. ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता. सपोज CaCl2, दैट मीन्स ये क्या होता है Ca2 प्लस एंड 2Cl निगेटिव. तो जनरली ये बेसिकली इस पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये यूनिवैलेंट पे एप्लीकेबल होता है. नाउ यू कैन सी द सम बेसिक फीचर्स ऑफ कोलरॉश लॉ. एट इन्फिनाइट dilutions, that means infinite dilution, that means concentrate approaches zero. At infinite dilutions, which is also known as, that means concentration approaches zero, electrolyte dissociate 100%, that is alpha. And but at such low concentrations of conductivity of the solutions is low that it cannot be measured accurately. Actually ये बहुत ही important point है. Now you can see and you can concentrate here. At such low concentration of conductivity of the solutions is low that it cannot be measured accurately. मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशंस अगर लो हो किसी भी सब्सटेंसेस का, अगर कॉन्सेंट्रेशंस बिल्कुल कम हो, दैट मीन्स डाइल्यूटेड ज़्यादा हो, उस केस में ऐसा क्या होगा कि उसको मतलब क्यों कॉन्सेंट्रेशंस लो होगा, दैट मीन्स वी हैव टू डिड इन्फिनाइट डाइल्यूजन्स. इन्फिनाइट मतलब बहुत अमाउंट में वाटर को ऐड करते गए तो एक सिचुएशन में क्या होगा कि जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत कम होगा. और इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूजन्स के बाद जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है एक टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेवियर शो करने लगता है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. मतलब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंटिन्यूसली अगर वाटर ऐड किया जाए या डाइल्यूशंस इनफिनाइट किया जाए तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा क्या करने लगता है, बिहेवियर करने लगता है. So you can see it is rather determined by the applying the Kohlrausch law. We can determine limiting molar conductivity values of weak electrolyte. Now finally we can discuss the definitions. ये जो थे कुछ बेसिक फीचर्स थे जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था. Now you can see according to Kohlrausch law, limiting molar conductivity, which is represented by Kpm naught, for any electrolytes is the summation in individual contributions of cation and anion of the electrolyte. That means
जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का, दैट मीन्स अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो इजीली कैलकुलेट किया ही जा सकता है, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, उस केसेस में हम उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नाउ विद द हेल्प ऑफ कोलरॉश लॉ वी कैन कैलकुलेट इजीली। So I hope you understand the definitions. So we can represent the definitions. Now see, cap m, that means limiting molar conductivity। कोई substances है, कोई भी salts होगा, electrolyte होगा, suppose NaCl, KCl जो कि आयनाइज होने के बाद प्लस माइनस होगा, that means cap m plus cap m minus। we can know now molar conductivity, limiting molar conductivity, sorry, limiting molar conductivity of cation, molar conductivity of anion। So simply we can write the cap m naught which is equals to cap m naught plus और cap m naught minus। that means अगर यहाँ पे अगर कैप एम नॉट अगर मैं NaCl की बात करूँ, NaCl विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैप एम नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा सोडियम प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कैप एम नॉट Cl माइनस। सो अगर एक एग्जांपल्स की बात करूँ, ये मूव फास्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो भी मूव फास्ट है, जो धनपत राय एडिशन से उस बुक की क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फॉर एग्जांपल्स, अगर मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl, अमोनियम क्लोराइड H2O, अगर मैंने लिया इसका जब आयनाइजेशन के सपोज ये क्वेश्चंस ही दिया हुआ है, नाउ वी कैन टेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पे सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही लिया है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहाफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव अगर केटायन की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ एनायन की वैल्यू से इसका कोई टच नहीं होता, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट आयन का माइग्रेशंस होता है। अगर मैं केटायन का वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो एनायन का वैल्यू क्या होता है, वो वेरी नहीं करेगा या डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर मैं को एनायन की वैल्यू चाहिए तो केटायन का नहीं करेगा। बेसिकली इसको हम लोग केटायन के पर्सपेक्टिव ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 अगर कंसीडर कर लूँ तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसे फाइंड करना है। सपोज़ अगर यहाँ पे इसको मैं सीन करूँ तो अपन को चाहिए क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये भी स्ट्रॉन्ग है HCl, NH4Cl ये भी स्ट्रॉन्ग है, H2O भी क्या है स्ट्रॉन्ग है। तो जो मेन फंडा जो है दैट मीन्स समेशन करना है, तो इसको ऐसे समेशन करना है जिससे कि हमको वीक सब्सटेंसेस, अगर इसको अगर देखा जाए तो वीक क्या क्या हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक हो सकता है। तो इस केसेस में इक्वेशन नंबर 1 2 3 को यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट किया और प्लस थर्ड को फिर मैंने क्या किया, ऐड किया। नाउ यू कैन सी नाउ व्हाट हैपेंड इज देयर, दैट मीन्स कैप एम नॉट NH4Cl। अब सेकेंड का वैल्यू क्या था, कैप एम नॉट NH4Cl एंड 2 से 1 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, कैप एम माइनस HCl एंड प्लस दैट मीन्स थर्ड वन इज कैप एम H2O। सॉरी अगर मैंने कैप एम के फॉर्म में लिया तो सभी को कैप एम के फॉर्म में ही रख लेता हूँ। अब राइट साइड एज ए डिस मैंने यहाँ पुट किया कि कैप एम, थोड़ा सा मिस्टेक, चलिए इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक। सो प्रॉब्लम ही ख़त्म। सो ये क्या हो गया, लेमडा या कैप एम NH4 प्लस। नाउ यू कैन सी NH4 प्लस कैप एम Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो भी था H माइनस Cl माइनस देन थर्ड प्लस लेमडा नॉट प्लस लेमडा नॉट OH। अब फाइनली यहाँ पे क्या मिला, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, ये Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव कैंसिल हो गया। यहाँ पे
यहाँ पे ये जो है H पॉजिटिव नेगेटिव और ये H पॉजिटिव कैंसिल हो गया। नाउ फाइनली यहाँ पे जो रिमेन सब्सटेंस है वो क्या बचा, कैप M NH4OH विच इज इक्वल्स टू कैप M NH4 cation प्लस NH4 सॉरी OH anion। सो फाइनली यहाँ पे क्या मिला, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ना ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। ये हमारे और आपके बोलने से नहीं, कोई रूल नहीं है, बस रूल इतना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट को ही फाइंड करना, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को साथ रख कर वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो फाइनली व्हाट वी गेट, that is weak electrolyte. Now Colrosh law has determined only weak solutions for molar conductivity. सो आप ही यहाँ पे सोचिए कि दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज़ था, कुछ नहीं था। नाउ वी कैन सी अनदर एग्जांपल्स। अगर इस एग्जांपल्स को अगर आपने लास्ट तक कंसंट्रेट किया तो आई गारंटीड you can understood each and everything on the behalf of Colrosh law. Now you can see calculate the molar conductivity for acetic acid. क्वेश्चन में ही बता दिया acetic acid, अब यहाँ कहीं acetic acid नहीं है। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, कैप M that means limiting molar conductivity of HCl strong electrolyte that is cap M H plus Cl negative, that's value is 4 to 6 Simon centimeter square mole inverse. So NaCl sodium plus chlorine negative which is equals to 1 to 6 Simon centimeter square mole inverse. And last thing is sodium acetate. Now each and everything having a strong electrolyte. Now you can see that is molar conductivity of sodium cation and acetate ion, that is 91 Simon centimeter square mole inverse. So what happened is there, now you can see, first of all you can write these equations, after that you can decide. So what we have, now you can see or check and also concentrate what I am doing here. Now what we get, that means acetic acid. Now how to find acetic acid, you can see मुझे ये सोडियम एसीटेट चाहिए। अगर सोडियम एसीटेट चाहिए तो दूसरा H कहाँ है, यहाँ फर्स्ट। तो यू कैन सी जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फिनोमिना। अगर एसिटिक एसिड की बात किया तो H कहाँ है, अपन को ये चाहिए, ये चाहिए। अब इसको कैसे कैंसिल आउट करना है, कैसे एसोसिएट करना है, ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है। नाउ यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 1। सो कैप M HCl limiting molar conductivity of HCl minus equation number 2. Now we can write minus equation number 2 NaCl and plus 3 third equation number, that is cap M sodium acetate. So finally what we get, now you can see here. Now cap M H plus, now value of H plus plus HCl minus sodium cation minus cap M chlorine negative and plus equation number 3 sodium plus and last thing is cap M acetate negative. So finally what we get, now we can say chlorine positive, chlorine negative cut, sodium negative, sodium positive cut. Now finally what is the remain substances, that is cap M H plus plus cap M acetate ion. So finally what we get, that is acetic acid. Now put on the value for the formula equation number 1 to 3. Now see, that means equation number is 1 4. Now you can see equation number 1 426 minus equation number 2 126 and plus 91. So if that calculate this value, that means simplified, what we get, 391 Simon centimeter mole inverse. So I hope my dear friends you will be understood. And one more thing is applications part of Colrosh law. Now this is a 4 basic parts of Colrosh law. Now first what we get, now you can see, now each and everything I already discussed over here. So I don't elaborate on the topic. And one more questions on the behalf of solubility is sparingly soluble salts can be calculated as a solubility. So based upon the solubility I want to tell you one more questions. Now you can see,
Now you can see the question. Now this is your test, only test yourself question. So I hope you like this video. If you like this video, please thumbs up, and thank you for watching this video.